हेलो दोस्तों, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे जिसमें डेरिवेटिव निकाल रहे थे। मैंने प्रिंसिपल मेथड और डिफिनीशन से कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है, साथ साथ उसका फार्मूला मैंने सिखाया आप लोगों को, उससे कैसे हम अप्लाई करके डेरिवेटिव निकालते हैं वो सिखा रहा था। उसमें से 2 सवाल का मैंने आप लोगों को सिखाया, तीसरा इसमें 15 में से थर्ड नंबर कर रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं। लेट y इक्वल टू 10 ax minus b. Then by definition, limit delta x tends to 0, delta y divided by delta x equal to limit delta x tends to 0, function of x plus delta x minus function of x divided by delta x. Now this can be written as dy by dx equal to limit delta x tends to 0. Here put the function 10 a into x plus delta x minus b minus 10 ax minus b whole divided by delta x. Now this 10 is converted. We will convert 10 into sine and cos. Therefore, limit delta x tends to 0, sine multiply करके लिख लेते हैं ax plus a delta x minus b minus sine ax minus b. This divided by cos ax plus a delta x minus b. Here cos ax minus b whole divided by delta x. This is delta x. Now next step, limit delta x tends to 0. We will take the LCM of these two terms. Cos ax plus a into delta x minus b cos ax minus b. Now we can write sine ax plus a delta x minus b into this and this कट, ये कट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये बचा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos ax माइनस बी माइनस, अब यहाँ देखिए ये और ये कट गया, हमको क्या मिला, ये बचा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो cos ax प्लस a डेल्टा x माइनस b इंटू साइन एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे x है, इसका मतलब ये डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. Here if we assume this is a and this is b, here sin a into cos b minus cos a into sin b, तो sin a minus b तो we can put the formula sin ax plus a delta x minus b minus ax a minus b b equal to minus ax plus b divided by delta x into cos ax plus a into delta x minus b into cos ax minus b. Now you see here ax cancel, b cancel, only delta x remain. Now next step, we can write limit delta x tends to 0. We can write here sin a delta x divided by delta x. This is in multiplication, प्रोडक्ट में है ये सभी, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय मैं कर सकता हूँ ये, वी कैन राइट इन दिस वे
एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स माइनस बी इंटू कॉस, नॉट नेसेसरी टू राइट, कॉस ए एक्स माइनस बी। अब देखिए इसको मैं एक फंक्शन मानता हूँ, इसको अगला फंक्शन मानता हूँ। तो लिमिट में मैंने पढ़ाया था कि जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट में हो तो यदि लिमिट साथ में हो तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसको भी लिमिट दे सकता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स माइनस बी इंटू कॉस ए एक्स माइनस बी। अब देखिए कि हम इसको देखिए यहाँ क्या है, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था। आई हैव टॉट ए फार्मूला इन लिमिट्स चैप्टर। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स by x equal to 1. I have shown you the proof of this also. Now if we compare this and this, here a is lacking in the denominator, that's why limit delta x tends to 0. We can here multiply by a sin a delta x divided by a delta x. Now if we put the value of delta x here, we get 1 by cos ax minus b into cos ax minus b. Now here, since delta x tends to 0, a into delta x tends to 0 into a, अर्थात a into delta x means tends to 0. Therefore, we can write here this line, limit, this a is a constant, we can take out from the limit a, delta a into delta x tends to 0. Limit a into delta x tends to 0. Here we can write sin ax, a delta x divided by a delta x into 1 by cos square ax minus b equal to, there is a, for this term we can write 1 into sec square a minus b, ax minus b equal to a into sec square ax minus b. This is the derivative of the function y equal to 10 ax minus b. Of course, you have understood. This is simple sum. Now, I will show you how formula is used. We can derive derivative of the same sum by using formula. Y equal to 10 ax minus b using formula. मैंने आप लोगों को फार्मूला याद करने के लिए कहा था। अब देखिए यहाँ क्या 10x, मैंने आपको फार्मूला सिखाया था 10x डेरिवेटिव ऑफ dy dx 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ इसको हम x मान लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर ax माइनस b। अब ये अलग से फंक्शन है, क्या फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसका चेन डेरिवेटिव होगा इनटू dy बाई डी एक्स ax माइनस b इक्वल टू sec स्क्वायर ax माइनस b। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि ये दो टर्म सेपरेट किया हुआ है प्लस माइनस से। तो इसका क्या होगा, ax का तो a होगा, इसका 0 होगा, तो ओनली therefore इक्वल टू a sec स्क्वायर ax माइनस b।
देखिए पहला रिजल्ट क्या था और बी का रिजल्ट सेम है। तो उसमें हमको 9 और 10 स्टेप लगे थे, इसमें कितना स्टेप लगा? 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप में खत्म हो गया। इसलिए फार्मूला आप लोग ध्यान से याद कर लेना। शुरू शुरू में हम ये इससे काफ़ी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप बाय डेफिनेशन तो आपको डिराइविटी कहाँ से आया, कोई सम ऐसा है आपने एग्जाम में भूल गए फार्मूला, तो आप उससे भी कर सकते हो, उससे यूज करके आपको फार्मूला वहीं पता चल जाएगा। जब कुछ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट सम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।